Brahman examination, I mean it is a superior examination, and in order to attain something superior, we have to give superior input. In order to attain something Brahman like input is required. And for that, we have to be on our toes right from the beginning. When I say on our toes, I mean we have to be very well prepared for the challenges to embrace and for the challenges to respond as well. In order to get success in this particular examination, you have to prove yourself to be a red apple in the galaxy of green ones. You have to prove yourself to be a kind of fruit among vegetables. This is the requirement of this examination. And mind you, when we ask students or participants that what is their major problem as far as the acquisition of English language is concerned, 90% students respond by saying that they are not good at vocabulary, they are bad at vocabulary. So this is the response we get from around 90% people. Now, there might be 101 reasons for getting deficient in vocabulary, for getting pathetic and poor in vocabulary. But the reality is that if our students run after words, words run away from them. वो उनके पीछे भाग रहे होते हैं और उनसे कहीं आगे दूर भाग रहे होते हैं. Whereas the requirement at this stage is that words should come to us as naturally as leaves come to trees in spring. It should be a spontaneous or automatic affair. We must not intentionally make effort to seek words. This is not the stage where we are right now. The stage demands that words should visit us. If I want to express an idea which is lying here and I want to express orally, the words should come on my lips. If I want to express something through written expression, the words should visit me and I must pen down as spontaneously as possible. This is the requirement right now. But unfortunately, our students, when they want to speak in this particular language, when they want to write in this particular language, what happens? They just hanker after words. They have got unnatural pauses when they speak. They have unnatural pauses when they write. The requisite fluency and rhythm, that is not to be found. वो जो एक required रवानी जिसे हम कहते हैं, जो मतलूबा रवानी होती है किसी भी ज़ुबान में एक्सप्रेस करने के लिए, वो बच्चों में बहुत ही कम है. वजह, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है that reading habits have gone into oblivion. कि ये जो हैबिट्स थी ना पढ़ने की, मुताले का जो एक शौक़ था, ये जो एक आदत थी, वो तो ख़त्म हो चुकी. वो तो अब कहीं ढूंढे से नहीं मिलती है. एक ज़माने में लोग जो है दे यूज़ टू गो थ्रू टेक्स्ट बुक्स, दे यूज़ टू गो थ्रू रेफरेंस बुक्स. वो टेक्स्ट बुक्स पढ़ते थे, रेफरेंस बुक्स पढ़ते थे,
जो है बहुत ज़्यादा लेबर करते थे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सर्टन आइडियाज़, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एक वक्त आया, द टेक्स्ट बुक्स के साथ सप्लीमेंट कर दिया हमने कीज़ को, की बुक्स आ गई साथ। अब कीज़ जब आई तो हमने उनसे हेल्प लेके टेक्स्ट बुक्स को समझना शुरू कर दिया। ये हो गया कि एक स्टेप हम पीछे चले गए। ओरिजिनल जो एक सोर्स था जिसको हम डिकोड करते थे उससे हम पीछे चले गए। किसी ने बहुत मेहनत की, कीज़ बना दी, अब हमारी मेहनत कम, ठीक है, और जिसने लिखी है उसकी तो मेहनत अच्छी खासी लगी उस पर। पहले हम वो स्ट्रगल करते थे और जब हम स्ट्रगल करके आगे जाते थे तो आने वाले दिनों में हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान होता था। सो फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स वी केम टू द कीज़ ब्लेंडेड विद टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स और कीज़ मिल के पढ़ते थे। उसके बाद ये ज़माना आ गया कि टेक्स्ट बुक्स बहुत पीछे चली गई और सिर्फ कीज़ पे लोगों का रिलायंस होना शुरू हुआ। आज कीज़ को भी हमने, वी हैव डिवोर्स्ड इवन कीज़ एंड वी हैव कम टू स्लाइड्स, a couple of slides before mid-term examination, a couple of slides before the final term examination. The same person teaches, the same person sets the paper, the same person marks it, and the same person, gives the final evaluation in terms of grading. So there is no threat, and where there is no external threat, the students will never go for studies. So they first divorced textbooks, then they divorced the keys, and now they have wedded with the slides. So this is one of the potential reasons why we are lacking in comprehending a given text, number one, why we are lacking in reproducing a given text, and why we are lacking in vocabulary. ये वो चीज़ें हैं जो शुरू से जो हमें नज़र आ रही हैं, जो एक जो है ना, एक तो होता है ना असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग पोजीशन में होना, अब हम डिसेंडिंग पोजीशन पे चले गए हैं बहुत हद तक इन टर्म्स ऑफ रीडिंग हैबिट्स। तो जब ऐसा मामला होता है तो फिर उसकी रिजुवेनेशन के लिए, रिवाइवल के लिए, वी हैव टू पुट अप सम एक्स्ट्रा एफर्ट। और CSS वो एग्ज़ाम है जो सिर्फ 2 साल नब्ज़ चलने से पास नहीं होता है, क्योंकि इस मुल्क में बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं 2 साल हमारी नब्ज़ चलती रहे तो हम जो है उसमें से पास हो जाते हैं उस एग्ज़ाम में। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज़ दैट व्हेन यू कम, you must come with a mission. You must come with sort of dedication. And if we come with a mission or with some sort of dedication, then a day dawns, we get very close to reaching our goal, inshallah al-Aziz. So this is something which I wanted to, share with you right in the very beginning. One more thing, very, very important in the very beginning, is that this is a class of language. And a class of language is basically a class of communication. And the saddest spectacle, the saddest phenomenon, the most tragic phenomenon in a class of communication is a communication gap between the teacher and the taught. I wish that I may minimize the gap to the extent I can. However, if you feel any gap of this sort, if you feel that you fail to interpret what I said, you fail to decode what is encoded by the teacher, you have every license to put your questions so that I may get them clarified. Why? Because my role as a teacher is not to complicate the simple things, but to simplify the complicated one.
So my request to all of you is that you must come up with your questions. If anything that is floated to you gets indigestible, you should straight away put your questions for clarification. इसमें किसी तरह से हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी तरह से ईगो का मसला बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी अना मजरू हो जाएगी और मुझे कोई बात करेगा या मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं, you will never be able to excel. The reason is that the ultimate barrier in the acquisition of knowledge is hesitation, is shyness. इल्म के हुसूल में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो झिझक और शर्म है। जब तक हम इसको एक तरफ नहीं रखेंगे, we shall never be able to excel in the domain of knowledge. तो ये चीज़ अपने जहन में आपने रखनी है। अभी तक जो बातें आपसे हुई हैं, अगर कहीं किसी भी जगह पे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगी, यू फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, यू आर सपोज टू पुट योर क्वेश्चंस। या इसके अलावा कोई सवाल स्टार्ट में अगर करना चाहते हैं CSS के बारे में, इस पेपर के बारे में ख़ास तौर पे और एसए के पेपर के बारे में, तो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। Any question from your side or any ambiguity or what I said and you failed to understand it so far. And this is meant to minimize the communication gap between you and me. कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम, इब्राहिम को, मियाँ साहब को, हाजरा को, सिलाल को, कहीं किसी को कोई अगर एम्बिग्विटी है तो प्लीज़ वो आप मुझे पूछें। नो सर, मुझे नहीं है। क्लैरिटी है? जी सर। सर और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्योंकि आपके पहले सेशन जो है वो अटेंड किया हुआ है, तो मतलब कुछ आइडिया है कि कंपोजिशन क्या होता है, प्रेसी वगैरह क्या होती है। तो जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि वो केप का 90% बच्चों को जो है वो मतलब मसला होता है, तो आई थिंक मेजर प्रॉब्लम जो है वो केप का है, और बाकी का मतलब आइडिया है ज़रा। अच्छा, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इन सेशंस में मेरा बहुत बड़ा फोकस होगा वोकैबुलरी बिल्डिंग इंशाल्लाह अज़ीज़, और वो आप महसूस करेंगे। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि अगर आप अपने कोर्स को देखें और अपने पेपर के पैटर्न को देखें, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि कोई 40% पेपर आपका डायरेक्ट आपकी वोकैबुलरी टेस्ट कर रहा होता है। 30 to 40% पेपर डायरेक्ट वोकैबुलरी टेस्ट करता है। कैसे? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, इडियम्स। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें वो डायरेक्ट आपकी वोकैबुलरी टेस्ट कर रहा है, और जहाँ डायरेक्ट हमारी जिसे ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है, जिसमें एनालॉजीज आती हैं, जब ये हम देखते हैं तो ये डायरेक्ट वोकैबुलरी को 30 to 40% पेपर। और अगर हम देखें बाकी क्वेश्चंस को, फ़र्ज़ किया ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन और इसके साथ प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, आप ये देखें कि उन क्वेश्चंस में भी वोकैबुलरी टेस्ट होगी, लेकिन इनडायरेक्टली होती है। वाई? इफ़ यू फेल टू डिकोड द गिवन कॉम्पोजिशन, आपको जो पैसेज दिया गया है ज़ाहिर अनसीन होगा वो कॉम्प्रिहेंशन में, प्रेसी में, ट्रांसलेशन में। अगर आप दिए हुए वर्ड्स को ही नहीं समझ रहे हैं सही तरह, और सिर्फ वर्ड्स को समझना नहीं होता, you have to read between the lines to reach the intended meaning of the writer. आपको बिटवीन द लाइन देखना होता है चीज़ों को, ताकि आप राइटर के जो मीनिंग है, उसने जो इंटेंड किए हैं, जिन पे वो आना चाहता है, लाना चाहता है, उन तक आपकी एक्सेस हो जाए। मकसद ये होता है, ये नहीं है कि हम सिर्फ उसका लिटरल मीनिंग, जिस तरह उसका डिनोटेटिव मीनिंग होता है, वो समझ लें। मैक्सिमम लैंग्वेज इज कॉनोटेटिव इन नेचर। एक होती है डिनोटेशन, एक होती है कॉनोटेशन। डिनोटेटिव मीनिंग होते हैं DENOTATIVE, डिनोटेटिव मीनिंग होते हैं डिक्शनरी मीनिंग, द लिटरल मीनिंग।
और कॉनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं द इम्प्लाइड मीनिंग्स, द कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड मीनिंग्स। जो कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब होता है वो होते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग्स। तो हमें मैक्सिमम कॉनोटेटिव मीनिंग्स की तरफ जाना है, क्योंकि लैंग्वेज है ही कॉनोटेशन का नाम, डिनोटेशन थोड़ी है। फर्ज किया द बुल्स वर वेरी एक्टिव एट द स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर एक बंदा ये समझता है कि कहीं चिड़ियाघर से निकल के स्टॉक एक्सचेंज पे चलेगा और बड़ी एक्टिविटी दिखाई, एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल। हमें देखना होगा कि बुल्स वर वेरी एक्टिव एट द स्टॉक एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज पे वो लोग जो ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि फ्यूचर में किसी शेयर में प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएंगी और वो बहुत ज़्यादा शेयर्स जो है वो ख़रीदते हैं, और वाकई जब बहुत ज़्यादा उनकी ख़रीद होगी तो प्राइसेस, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। तो ऐसा बिजनेस स्पेकुलेटर जो इस तरह स्पेकुलेशन करता है, ही इज़ कॉल्ड अ बुल। तो हमें लैंग्वेज को देखना है ऐसे ही, ठीक है, कि उसको हम देखना है कि यहाँ इस वर्ड का मीनिंग क्या है। शी इज़ इंजॉइंग द बॉल, ठीक है। अब यहाँ जो बॉल का मतलब है, कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा है कि वो कोई डांसिंग पार्टी इंजॉय कर रही है। बॉल ऐसी डांसिंग पार्टी को कहते हैं जो एक बॉल लाइक थिएटर में जो है जिस तरह होता है, जो कंडक्ट की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डांसिंग। उस डांसिंग पार्टी को कहा जाता है बॉल। अब कोई बंदा अगर ये समझता है कि वो बॉल में चली गई, कितना बड़ा बॉल होगा जिसमें वो चली गई, तो ये जो है दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल। बस आपने ये याद रखना है, अ वर्ड इज़ नोन बाय द कंपनी इट कीप्स, अ वर्ड इज़ नोन बाय द कॉन्टेक्स्ट इट इज़ यूज्ड इन। आपने ये याद रखना है कि एक वर्ड अपने कॉन्टेक्स्ट से जाना जाता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा वहाँ उसका वो मतलब होगा। अगर हम उसे कॉन्टेक्स्ट से हट के उसके मीनिंग देखेंगे तो वो फ्रोज़न मीनिंग्स होंगे, वो डायनेमिक मीनिंग्स नहीं होंगे। हमें डायनेमिक मीनिंग्स की तरफ जाना है, फ्रोज़न मीनिंग्स की तरफ नहीं जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ यस्टरडे आई सॉ अ स्कूल ऑफ फिश, और मैं किसी से कहता हूँ यस्टरडे आई सॉ अ स्कूल ऑफ फिश, और वो समझता है पता नहीं वो कैसा स्कूल होगा, कैसे बेंचेस होंगे फिश के, कैसा जो है वो टीचर होंगे फिश के जो पढ़ाते होंगे, एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल। स्कूल ऑफ फिश का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फिश, उसे स्कूल कहा जाता है। कभी स्कूल का मतलब कुछ होगा, जब हम कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट तो स्कूल का मतलब और होगा, जब हम कहते हैं प्राइमरी स्कूल तो स्कूल ऑफ का मतलब और होगा, और जब हम कहते हैं स्कूल ऑफ फिश तो स्कूल का मतलब बिल्कुल और हो जाएगा। सो मैंने आपसे ये कहना है कि हमें ज़ुबान को जब सीखना है तो हमें उसके कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड मीनिंग्स को देखना है, और कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड मीनिंग को वो देखेगा हु इज़ गुड एट रीडिंग, हु इज़ स्मार्ट एट रीडिंग। एंड हाउ टू बी स्मार्ट, it is not a radical phenomenon, it is not a revolutionary method। ये कभी नहीं होगा, ना ही मैं आपको इन क्लासेस में ये बताऊंगा कि आपको जनाब रात को ये इंजेक्शन लगना चाहिए और सुबह आप प्लेटो बन जाएंगे या एरिस्टोटल बन के उठेंगे और यू विल बिकम अ सोक्रेटिस। नेवर एवर। अगर कोई बंदा इस एंगल से ज्वाइन करना चाहता है क्लासेस को, ही और शी मस्ट नॉट। माई रोल इज़ टू फैसिलिटेट एज अ टीचर। आपको फैसिलिटेट करना है बीइंग टीचर, और फैसिलिटेट करके आपको आगे लेके जाना है। ये है कि मैं आपको कोई अलादीन का चिराग दूंगा, इट विल नेवर एवर हैपन, ऐसा कभी नहीं होगा। और इस एंगल से किसी को क्लास लेनी भी नहीं चाहिए। ये क्लास अगर आपने लेनी है तो इस एंगल से लेनी होगी कि हमें ग्रेजुअली वन स्टेप, the other one, the third one, the fourth one, मुख्तलिफ स्टेप्स हमें लेने होंगे, और उन स्टेप्स पे फिर हमें आगे जाके एक्सेल करना होगा with these steps. So it is not a revolutionary phenomenon, it is an evolutionary phenomenon। ये एक इर्तिकाई अमल होगा, ग्रेजुअल ऊपर हम जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह करके हम बिल्ड करेंगे चीज़ों को, ताकि हम क्रचेस, अब इर्तिकाई अमल से ये भी मुराद है कि हम क्रचेस पे ना रहें, बैसाखियों पे। हम करते क्या, हमारा स्टूडेंट करता क्या है, वो पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जो है
वो ख़ास तौर पे वो चीज़ें देखेगा कि उसने वोकेबलरी अगर बिल्ड करनी है तो वो क्या करेगा जी, एक लिस्ट ले लेगा, उसको मगअप करना, रट्टा लगाना शुरू कर देगा। एक दूसरी लिस्ट ले लेगा, उसको रट्टा लगाना शुरू कर देगा। तीसरी लिस्ट ले लेगा, रट्टा लगा लेगा। फिर क्या होगा, जब कोई 8-10 हो जाएंगे, देयर इज अ हॉच पॉच, देयर इज अ मडल, देयर इज अ केओस। वो केओस बन जाएगा, क्लैरिटी नहीं होगी। क्लैरिटी किसको आएगी? क्लैरिटी उस शख्स को आएगी जो इस तरह पढ़ रहा है कि उसने एक चीज पढ़ी, एक स्टोरी पढ़ रहा है, एक लेटर पढ़ रहा है, एक आर्टिकल पढ़ रहा है, एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा है, उसमें वर्ड्स आ रहे हैं नए नए। अब उसमें जब नए वर्ड्स आएंगे तो उनको कॉन्टेक्स्ट में देखेगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुए हैं, और फिर कॉन्टेक्स्ट में देखने के बाद कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स की तरफ वो जाएगा। और अगर वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स की तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये है ही विल रीच द इंटेंडेड साइड। वो उस साइड पे पहुंचेगा जहां उसे राइटर लाना चाहता है, एंड ही विल डिकोड एंड इंटरप्रेट द वे द राइटर विशेस हिम और हर टू इंटरप्रेट। इस तरह ये मामला होगा, फिर हम आगे जा सकेंगे। लेकिन अगर, इसीलिए मैं कहता हूँ, अ वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। व्हाट इज द कंपनी ऑफ अ वर्ड? इट इज द कॉन्टेक्स्ट। वर्ड की कंपनी क्या होती है? उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। अब जिस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड बोला जाएगा, उसी एंगल से उसे इंटरप्रेट किया जाएगा। यू गेट व्हाट आई से, इब्राहिम? यस सर, ऑल राइट। कोई और अगर आपका क्वेश्चन है किसी का, किसी से, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। एनीवन? एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम हेलो जी। सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें ये पूछना था, जो अटेम्प्ट्स दिए ना पहले, तो वो मीन्स कुछ अच्छा लिखने की कोशिश में ना माइंड स्टक हो जाता है कभी कभी। जो नेचुरल आ रहा होता है वो, जिस तरह आपने कहा था अभी, मीन्स जो हमारी ट्रेनिंग ऐसे हुई है ना कि हम उर्दू में सोचते हैं पहले, उसको फिर इंग्लिश में लिखते हैं पेपर हाँ पे। हाँ हाँ हाँ, बस पे आता हूँ। जैसे देखें, ये सवाल तो जो है ना मेरे से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी है। मैं आई वॉज ग्रूम्ड इन अ रूरल सेटिंग टिल मैट्रिकुलेशन। मैट्रिक तक एक गांव में हमारी जो है वो ग्रूमिंग होती है स्कूल में। और गांव में अनडाउटेडली मुझे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी पढ़ाई गई। अच्छी अंग्रेज़ी इस हवाले से थी कि हमें टेंसेस बहुत अच्छे करवाए गए, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे करवाए गए, हमें एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे करवाए गए, और हमें हमारी they were so much drilled that they gone into our bones and blood. So our basic structure got very, very good at school. However, what was lacking at school? कम्युनिकेशन स्किल्स वर लैकिंग एट स्कूल। हमें ये नहीं बताया गया कि आपने खुद से कैसे लिखना है, खुद से सोचना है, खुद से क्रिएट करना है चीज़ों को, हमें ये नहीं बताया गया। अच्छा, अब जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में गया फॉर माई फर्स्ट ईयर, तो वहाँ जाके बिल्कुल हम एलियन थे, वी वर न्यू कमर्स। हमें बिल्कुल पता ही नहीं था कि हमने कैसे जो है वो लिखना, कैसे बोलना। अब वहाँ जब गए तो वही हम रटा चुके लगाते थे, चीज़ हमें समझ में आ जाती थी, उसको हमने रटा लगा लिया, और फिर जाके इम्तिहान में वी वॉमिटेड इन द पेपर एंड वी गॉट मार्क्स। सो दिस यूज्ड टू हैपन। हम वही जाके पेपर में वॉमिट कर देते और फिर हमारे मार्क्स भी आ जाते। तो ये एक खराबी हमारे साथ चल रही थी। मैं ये समझता हूँ दैट क्रैमिंग इज जस्ट लाइक क्रचेस, कि ये जो रट्टा है ना, ये बैसाखियाँ हैं, जो ही फारिग हुई आप ख़त्म हो गए। इफ़ वी वांट टू कम टूवर्ड सेल्फ रिलायंस, अगर हम सेल्फ रिलायंस की तरफ आना चाहते हैं ना, खुद कफालत की तरफ, तो हमें फिर जीसी में आकर उन्होंने बताया कुछ चीज़ें, हमें उन्होंने हमारे साथ शेयर की। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो शेयर क्या की उन्होंने कहा कि अपनी डायरी लिखें। उन्होंने कहा कि आप आपस में एक दूसरे के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। वो हम करते रहे, डायरी लिखते रहे। और ये जब हमने काम किए तो इससे ये हुआ कि सुबह उठना है, डायरी लिखनी है। वो हमारी चेक होती थी डायरी, हमारे इंग्लिश के टीचर चेक करते थे। तो हमने क्या लिखा जी, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैड, पहले दिन मैंने लिखा जी आई हैड वजू। अब जब वजू लिखा तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो फिर हमारे टीचर ने हमें बताया कि उर्दू से इंग्लिश डिक्शनरी लें। हम उस वक्त मुकम्मल उर्दू में सोचते थे, या बल्कि पंजाबी में सोचते थे, और उसे अंग्रेजी में लेके आते थे। तो हमने डिक्शनरी ली, वो उर्दू से इंग्लिश। तो हमने पढ़नी शुरू कर दी उसको। जो वर्ड वजू देखा तो एब्ल्यूशन था,
एक दिन ये हुआ कि आई क्लीन माई टीथ विद मिसवाक, तो मैंने मिसवाक लिखा, फिर देखा तो उसका डेंटिफ्राइज लिखा हुआ था, फिर मैंने वो यूज़ किया। तो अगर आप वर्ड लेते हैं और वर्ड आप उस फौरन यूज़ कर लेते हैं अपने सेंटेंस में, दैट बिकम्स योर एसेट, फिर वो आपका एसेट बन जाता है, फिर आप मुसलसल उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्ड का सिर्फ मीनिंग समझते हैं और उसको यूज़ नहीं करते, तो फिर जो है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, दैट इज समवन एल्सेस प्रॉपर्टी। तो इन ऑर्डर टू मेक द वर्ड्स योर ओन प्रॉपर्टी, यू हैव टू यूज़ देम इन योर ओन एक्सप्रेशन। खुद से सेंटेंस बनाएं, किसी को चेक करवाएं, करवाने के बाद फिर आपको एहसास होगा ये गलत है या ये सही सेंटेंस है। तो इस तरह करके जो आगे जो जाएंगे उनके लिए फिर आसानियां हो जाएंगी। मुझे आज भी याद है, देखें, अगर आपने एक वर्ड है मोटिवेट, दूसरा वर्ड है इंस्टिगेट, दोनों का मतलब तकरीबन एक जैसा है, लेकिन मोटिवेट पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, ये कौन आपको बताएगा, यूज, और इंस्टिगेट नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, ये कौन आपको बताएगा, उसका यूज बताएगा। आई मोटिवेटेड हिम टू वर्क हार्ड, he instigated her to go for murder। मोटिवेट करना किसी अच्छे काम के लिए, उसकी हौसला अफजाई करना, इंस्टिगेट करना किसी को बुरे काम के ऊपर उकसाना। अब मैं आपको ये बात यहाँ बताऊँ, एक इंग्लिश में एक चीज़ होती है, बल्कि हर ज़ुबान में ये चीज़ होती है, जिसे कहा जाता है कॉलोकेशन। ये नोट कर लें, ये टर्म COLLOCATION, कॉलोकेशन, ये टर्म है, ये कॉलोकेशन। इसका मतलब क्या है? कॉलोकेशन ये है, कैन वर्ड ए अकम्पनी वर्ड बी इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, क्या ए बी के साथ मिल के आ सकता है कि नहीं आ सकता, इसे कहते हैं कॉलोकेशन। जितना आपका रीडिंग एक्सपोजर बेहतर होता जाएगा, और रीडिंग एक्सपोजर भी कौन सी रीडिंग्स, नेटिव इंग्लिश स्पीकर की लिखी हुई राइटिंग्स जो हैं, उनको जितना आप पढ़ते रहेंगे आपके कॉलोकेशन पैटर्न्स बेहतर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम सारे लोग कहते हैं आई टुक अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी, ठीक है, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं आई टुक अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफी। टी और कॉफी के साथ स्ट्रॉन्ग का वर्ड हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखें, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ये सिनोनिम्स हैं कि नहीं? जी मियां जमान, स्ट्रॉन्ग एंड जी पावरफुल, सर, आर दे सिनोनिम्स? जी सर, यूज कर सकते मुतरादिफ हैं। तो हैं, लेकिन ये बात याद रखें, दो वर्ड्स हमेशा हर कॉन्टेक्स्ट में मुतरादिफ नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी सिनोनिम्स इन ऑल कॉन्टेक्स्ट। क्या हम यहाँ यूज कर सकते हैं आई टुक अ कप ऑफ पावरफुल टी? नो सर। और पावरफुल नहीं कर सकते हैं। ये पावरफुल नहीं इसे कर कहते सकता। हैं कॉलोकेशन। द वर्ड स्ट्रॉन्ग विल कॉलोकेट टी एंड कॉफी, बट द वर्ड पावरफुल विल नॉट। आप देखो, हम अक्सर कहते हैं मिस्टर जिन्ना इज द फादर ऑफ द नेशन। कैन वी से मिस्टर जिन्ना इज द पापा ऑफ द नेशन और द नो डैडी सर। ऑफ द नेशन? अब डैडी, पापा, फादर, इनके मतलब एक ही हैं, लेकिन डैडी एंड पापा आर यूज्ड इनफॉर्मली, whereas the word father is used formally. This is called collocation. हम कहते हैं in the war people are wounded, but in accidents they are injured. कि वॉर के अंदर तो लोग जो है वो वहाँ वूंडिंग होती है, यहाँ इंजरीज होती हैं एक्सीडेंट्स में। अब ये कौन बताएगा? ये हमें कॉलोकेशनल पैटर्न्स बताएंगे, ये हमारी रीडिंग हमें बताएगी। जितना हम एक्सपोज होते जाएंगे उतना हमारी वो जो कॉलोकेशन पैटर्न्स जो हैं वो बेहतर होते जाएंगे। मैंने आपसे यही कहना है कि कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा करें, फॉर गॉड्स सेक। जब आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो फिर आपकी कॉलोकेशन पैटर्न्स बेहतर होंगी, एग्जामिनर पे आप एक इम्पैक्ट छोड़ के आए। या होता क्या है, हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है जी, बहुत भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो एग्जामिनर को इम्प्रेस करेंगे। Ladies and gentlemen, we are not supposed to impress the examiner this way, we are supposed to depress him. उसे भारी भरकम अल्फाज नहीं चाहिए आपके। What examiner needs? Right collocation, the right word at the right juncture.
He needs appropriate words at the appropriate occasion. उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि सही वर्ड को सही जगह लिखो। अब आपके पेपर में कई दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट लिखी होती है, नीचे लिखा होता है डिस्कस। अब एग्जामिनर ने तो डिस्कशन मांगी है, आपने पता नहीं क्या दिया है। कई दफ़ा वो लिखा है डिस्क्राइब, कई दफ़ा वो लिखता है इलस्ट्रेट। अब रिक्वायरमेंट ये है जो वो आपसे मांग रहा है वो दें। अगर वो इलस्ट्रेट लिखता है तो एग्जाम्पल से उसे साबित करें। अगर वो कंपेयर लिखता है तो आप उसकी सिमिलैरिटीज़ बताएं, और उसकी सिमिलैरिटीज़ के साथ साथ आपने जब कंपैरिजन होता है तो सिमिलैरिटीज़ प्लस डिफरेंसेस दोनों बताने होते हैं। और तो एक्सक्लूसिवली उसका हमने जो है वो बताने होते हैं, उसमें ऑपोजिट चीज़ें क्या क्या है। मैक्सिमम कंपेयर में दोनों बतानी होती हैं। अगर अब हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है, तो फिर हमारा हाल वही होता है कि हम कहते हैं जी बहुत अच्छा पेपर हुआ है, उसने मांगी थी डिस्कशन, हमने सारी लिख दी डिस्क्रिप्शन, पेपर बहुत अच्छा हो गया है, और वहाँ 0 मार्क होता है उसका। क्योंकि ये इंटरमीडिएट नहीं है कि एग्जामिनर कोई तरह थोड़ा सा तरस खाएगा। दिस इज a senior level examination where the examiner is extremely ruthless and cruel to anything not required. तो ये आपको इन चीज़ों का आपको ज़रूर जो है वो ख्याल रखना है। तो अब अगर आपका कोई और बात है तो पूछें। आई थिंक योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। एक सर और प्रॉब्लम आता है सर, ये स्क्रीपीएमएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इनके जो सिनोनिम्स के जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, उसमें आता है कि सबसे जो मतलब ज़्यादा उनके जो मतलब ज़्यादा जो मिलता जुलता वर्ड है मीनिंग के साथ, तो आप उस पर करें। जैसे फेमिलियर है, उसका एक जगह पे आता है कि नॉन अवेयर, तो हम नॉन पे करें या फिर अवेयर पे करें, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम होता है फेमिलियर के साथ। तो फिर इन जगह पे हम क्या करें? क्या क्या मुझे क्वेश्चन आपका नहीं क्लियर हुआ। सर एक वर्ड देते हैं, उससे कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो मिलता जुलता मतलब वर्ड है उस पे टिक लगाएं। तो जैसे फेमिलियर होता है, तो फेमिलियर का मतलब नोन भी होता है और अवेयर भी होता है, तो मतलब जो ज्यादा मिलता जुलता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा जो मिलता जुलता है, अगर हम अच्छा, एक तो कॉन्टेक्स्ट पे बात जाए? ये याद रखें, मैंने ये थोड़ा सा अच्छा हो गया आपका ये क्वेश्चन आ गया है सामने। एक बात आपने याद रखनी है, जो आम तौर पे हमारा स्टूडेंट जो है वो याद नहीं रखता और वो डॉज होता है इस क्वेश्चन में, वो ये है, देयर इज नो रूम फॉर क्लास चेंज इन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये बात लिख लें अपने पास कहीं। देयर इज नो रूम फॉर क्लास चेंज इन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में क्लास चेंज होने का कोई तस्वर नहीं होता। अब क्लास चेंज से क्या मुराद है? क्लास चेंज से यह मुराद है कि अगर एक वर्ड आपको दिया गया है और उसका सिनोनिम मांगा गया है, और वो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, तो आपने याद रखना है उसका सिनोनिम भी एडजेक्टिव ही होगा। अगर वो वर्ड नाउन है, उसका सिनोनिम भी नाउन ही होगा, और कोई नहीं हो सकता। अभी समझ आ गई सर, एग्जैक्ट। अब देखें, अब करता वो गेम क्या है एग्जामिनर, करता वो ये है कि उसने दिया आपको एक वर्ड, वो वर्ड है वाइज, WISE। वाइज का मतलब है अक्लमंद, और ये इंग्लिश में एडजेक्टिव है। ठीक हो गया, उर्दू में अक्लमंद एडजेक्टिव है। अब अगर उसने आगे आपको चॉइस दी है, ठीक है, नंबर 1 चॉइस उसने दिया सेज, SAGE। नंबर 2 दे दिया सगैसिटी, SAGACITY। ठीक है, नंबर 3 दे दिया फुलिशनेस, और नंबर 4 दे दिया फूल। और वो कहता है कि आप इसका सिनोनिम बताएं। तो आपने सेज को टिक करना है, क्योंकि सेज का मतलब होता है अक्लमंद, और सगैसिटी का मतलब होता है अकल। सेज यहाँ एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही हो सकता है। और सगैसिटी यहाँ क्या है? इट इज़ नाउन, और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वो नहीं होगा। तो ऐसा वो करता है एग्जामिनर। वो जाहिर है ये कोई छोटे लेवल का तो एग्ज़ाम नहीं है ना, तो वो क्या समझता है, ही वॉन्ट्स टू know whether the students understand the subtleties or the minute things regarding language, कि वो बारीक चीज़ें भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं।
तो ये तो उसने टेस्ट भी करना है इस लेवल के ऊपर। आई थिंक यू गॉट माई क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर वो दे देता है केओस, ठीक है, और केओस का वो कहता है आप बताएं जो है वो सिनोनिम बताएं, तो केओस का, केओस नाउन है, उसका सिनोनिम होगा एनर्जी, उसका सिनोनिम होगा डिसऑर्गेनाइजेशन, उसका सिनोनिम होगा मिसमैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर वो लिख देता है जो है एक तरफ वो लिख देता है कि मिसमैनेज, ठीक है, और आगे वो केओस लिख देता है, तो वो उसका सिनोनिम नहीं है। मिसमैनेज तो वर्ब है, मिसमैनेज्ड एडजेक्टिव है, मिसमैनेज्ड अफेयर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये भी नहीं उसका सिनोनिम होगा। उसका सिनोनिम सिर्फ मिसमैनेजमेंट होगा, डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि नाउन का सिनोनिम सिर्फ नाउन ही हो सकता है। हाँ, ये बात याद रखें, समटाइम्स वन वर्ड can be a noun, the same word can be an adjective, the same word can be a verb. For example, आप देखें कि हम कहते हैं कि I will fast during रमज़ान, मैं रमज़ान में रोज़ा रखूँगा। फास्ट यहाँ क्या है? वर्ब। दूसरी जगह क्या है? I will observe fast during रमज़ान, यहाँ फास्ट यह नाउन इस्तेमाल हुआ, यहाँ इसका मतलब रोज़ा है, और रखने के लिए ऑब्जर्व का वर्ड इस्तेमाल हुआ। अगर मैं कहता हूँ आई एम अ फास्ट रनर, यहाँ फास्ट जो है वो, ठीक है, एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, यहाँ रनर को वो क्वालिफाई कर रहा है। तो प्रॉब्लम तब आता है बच्चों के लिए जब एक ही वर्ड होता है, एक कॉन्टेक्स्ट में वो एडजेक्टिव है, दूसरे में नाउन है, तीसरे में कहीं वर्ब है, चौथे में कुछ और है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ आई रन फास्ट, यहाँ एडवर्ब हो गया क्योंकि रन को क्वालिफाई कर रहा है जो नाउन है। तो मेरी कोशिश होगी कोई एक आध लेक्चर में ज़रूर आऊँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इन लेक्चर्स में से, ताकि आपको क्लैरिटी भी हो जाए, आपको ग्रास रूट लेवल चीज़ें समझ में आ जाएं, फिर इंसान की इंटरेस्ट भी बेहतर होती है और अपने ऊपर एतबार भी आता है। तो जब ग्रास रूट से आया जाएगा, दूसरी बात यह है कि एग्जामिनर भी खुदा न खास्ता अगर उसने चूँकि लिखे हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कोर्स का हिस्सा है, ये आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, नाउन, प्रोनाउन सारे, तो वो कोई ऐसा सवाल भी दे सकता है कि कुछ नाउन्स दे दे, कहे इनके एडजेक्टिव बना दें, या कुछ वर्ब दे दे, कहे इनके नाउन बना दें। फर्ज किया वो कहता है जो है वो ग्रास नाउन है तो इससे वर्ब बना दें, तो हमें ग्रेज लिखना होगा। ग्लास नाउन है तो उससे हमें वर्ब बनाने को कहे तो ग्लेज जो है वो ग्लास से ग्लेज हो जाएगा वर्ब, ठीक है। फ्रेंड अगर नाउन है तो बिफ्रेंड, इससे बन जाएगा वर्ब, दोस्त बनाना। ऐसा सवाल भी खुदा न खास्ता हो उसको अगर माइंड आ गया तो वो पूछ सकता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारा सेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी होना चाहिए, सो दैट वी मे स्टार्ट लर्निंग थिंग्स फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, वहाँ से हमें चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए। जी, अब इब्राहिम कोई अगर आपके कोई तसल्ली हो गई है तो ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ सर, बस इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वो क्लियर हो गया। थैंक यू। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चन? चलें आगे अब चलते हैं। अब मैं लेट अस हैव अ ग्लांस एट द कोर्स आउटलाइन। हमारी कोर्स आउटलाइन हमें क्या कहती है, और जिस तरह मैंने कहा कि मेरा बहुत बड़ा थ्रॉटल जो होगा वोकैबुलरी बिल्डिंग पे होगा, ताकि वर्ड्स क्या हो जाएं, वर्ड्स शुड बिकम आवर ओबीडिएंट सर्वेंट्स, नॉट आवर मास्टर्स। अभी क्या है, अभी ये है कि वर्ड्स जिस तरह हमारे मास्टर हों और हम उनके बड़े ओबीडिएंट सर्वेंट्स हैं। ये स्टेज ख़त्म हो जानी चाहिए। The words should be our slaves and we must exploit them the way we wish. जैसे हम चाहें हम उनको इस्तेमाल करें, ये सूरत हाल होनी चाहिए। एक्चुअल तो ये होनी चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अच्छा जी, जब हम कोर्स आउटलाइन को देखते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का जो पहले होता है शुरू में, वो होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर, मुतरादिफ अल्फाज, मुतसाद अल्फाज, ठीक है। उसमें उन वो ऑप्शंस देता है। वैसे स्पिरिट तो ये है कि जब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएं
तो वो कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाएं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चूँकि एक कल्चर है जिसे हम कहते हैं रोट लर्निंग कल्चर, क्रैमिंग कल्चर, एक रट्टे वाला कल्चर है, तो हमारा सिस्टम अभी तक उसे प्रमोट कर रहा है। और वो वर्ड्स को स्प्लिट पूछते हैं, एक वर्ड है नीचे 4 उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं, वो पूछ रहे हैं। स्पिरिट ये है कि पूरा क्वेश्चन, पूरी एक स्टेटमेंट हो, उसमें वो वर्ड यूज किया हुआ हो और फिर नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाए और पूछा जाए कि इसका क्या मतलब है। दैट इज एक्चुअली द वे सच क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हमें वर्ड दिया जाता है, नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं या 5 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से हमें देखना होता है क्लोजेस्ट इन मीनिंग और ऑपोजिट इन मीनिंग एंटोनिम्स के अंदर। तो चूंकि जाहिर है फिर जिस तरह हमारा सिस्टम है उसके मुताबिक ही हमें चलना है, तो हमें उसके मीनिंग्स देने होते हैं। वो जो है, इसमें जो अहम बात जो थी वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ट्रेस करते हुए आपने क्लास मेंटेनेंस की तरफ जाना है, क्लास चेंज की तरफ नहीं जाना। क्लास मेंटेनेंस क्या है? क्लास मेंटेनेंस ये है कि एक नाउन का सिनोनिम नाउन, एक नाउन का एंटोनिम नाउन, इसी तरह एक वर्ब का सिनोनिम वर्ब और एक वर्ब का एंटोनिम वर्ब। फर्ज किया अगर वो देता है सेटन, SATAN सेटन, तो इसका सिनोनिम होगा डेवल। लेकिन अगर वो दे देता है स्टैनिक, SATANIC, तो स्टैनिक का सिनोनिम जो होगा वो डेवलिश होगा, डेवल नहीं होगा। सेटन का मतलब शैतान, डेवल का मतलब शैतान, स्टैनिक का मतलब शैतानी और डेवलिश का मतलब भी शैतानी होगा। तो ये है कि नाउन का सिनोनिम नाउन, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव और वर्ब का वर्ब। इसी तरह एंटोनिम्स में होगा। तो ये क्वेश्चन जो है, और इसमें जो है ज़ाहिर है हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड वोकैबुलरी, उसमें ये बातें सारी आएंगी कि किस तरह इस क्वेश्चन को हम बेहतर कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल होगा, ये 20 मार्क्स का सवाल होता है, 10 के सिनोनिम्स, 10 के एंटोनिम्स, डायरेक्ट वोकैबुलरी टेस्ट। फिर एक क्वेश्चन होता है, उसमें वो बात करता है ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स में वो आपसे पूछ सकता है पेयर्स ऑफ वर्ड्स, वो आपसे पूछ सकता है एनालॉजीज। पेयर्स ऑफ वर्ड्स में वो क्या करता है, 2 वर्ड्स हैं तकरीबन एक जैसे या थोड़े से मुख्तलिफ प्रोनाउंस होते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग में फ़र्क होता है और उनको वो लिख देता है और वो कहता है कि इनको सेंटेंसेस में यूज़ करें। पहले तो ये होता था कि हम उन्हें सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर देते थे विदाउट एक्सप्लेनिंग देयर मीनिंग। अब उसने एक कंडीशन लगा दी है कि पहले जो है उन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को आपने इस्तेमाल करना, उनको एक्सप्लेन करना उनका मीनिंग, और मीनिंग बताना है पैरेंथेसिस के अंदर। आपने ब्रैकेट्स, छोटी ब्रैकेट्स के अंदर उनके मीनिंग लिखना है और फिर उसे एक्सप्लेन, उसके सेंटेंस बनाना है। सो दिस इज़ अ बिट टफ। लेकिन ये फ़ायदा इसका ये है कि इसको सिर्फ वो लोग अब अटैम्प्ट करेंगे जिनको वो आता है, और गलत अटैम्प्ट करने से लोग बचेंगे कि जो बहुत ही गलत तरीके से अगर कोई वर्ड आता है और वो QUAY एक वर्ड आता है और वो एग्जामिनर वो लिख देते हैं बच्चे कई दफ़ा, आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ QUAY, उसको की कहते हैं। और ये हार्बर पे वो जगह होती है जहाँ शिप्स जो है उनको लोड और अनलोड किया जाता है, उसको की कहते हैं, QUAY। की और की कई दफ़ा पेयर्स ऑफ वर्ड्स में आ जाता है, KEY QUAY। तो ये जो तरीका है कि आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड की, कि आपने की को ये की इस्तेमाल कर दिया, बच्चे ये समझते हैं मैंने तो ये यूज़ कर दिया एक सेंटेंस में। दिस गिव्स एन awful impression to the examiner, वेरी वेरी बैड। अगर एग्जामिनर ने कहीं सोचा भी है ना ऐसे कैंडिडेट को पास करने के बारे में, तो ये सेंटेंस अगर उसने पढ़ लिया तो वो मुकम्मल फेल करेगा ऐसे कैंडिडेट। हो सकता है 0 मार्क दे दे पूरे पेपर में कि ये मजाक कर रहा है CSS लेवल के ऊपर ये शख्स। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while attempting CSS. A slight, deviation might
make you land somewhere in hell. ये हो सकता है इसमें, खुदा न खास्ता ज़रा सी खराबी आपने कर दी और वो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस उसके सामने आ गए। ये नहीं आपने करना। आपने एग्जामिनर को ये इम्प्रेशन नहीं देना कि आप इंतहाई नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। इससे नॉन सीरियसनेस शो होती है ऐसे सेंटेंस से। जो आपको आता है उसको आप लिख के आएँ, जिसके बारे में कुछ डाउट है वो भी अटेम्प्ट कर लें, लेकिन जहां आप महसूस करते हैं कि नहीं, उसको मत अटेम्प्ट करें। इट विल बैक फायर, अदरवाइज वो बैक फायर करेगी चीज़, एंड एग्जामिनर विल बी रूथलेस एंड क्रूअल टू यू। सो अवॉइड डूइंग सच अ फेटल मिस्टेक। अच्छा जी, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स में एक क्वेश्चन आ जाता है एनालिसिस। एनालॉजी क्या है? एनालॉजीज में वो दो वर्ड्स देता है टॉप पे। फॉर एग्जांपल अगर उसने दिया है हाउस और रूम, ठीक है, एक तरफ उसने हाउस लिखा है, एक तरफ उसने रूम लिखा है, ठीक है, तो आगे जो है वो लिखता है, फर्ज किया आगे जो उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं, कितने सारे, 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें एक ऑप्शन जो है वो कह देता है, फर्ज किया कॉलेज और क्लासरूम। सो होल एंड पार्ट, यहाँ कौन सा रिलेशनशिप था? हाउस एंड रूम। एक हाउस में कई सारे रूम्स होते हैं, ठीक है, तो हम उसने ये कह दिया कि हाउस होल है और रूम उसका पार्ट है। दूसरी तरफ कॉलेज होल है और क्लासरूम उसका पार्ट है। इस तरह, ये तो मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी, वो ज़रा टफ देगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने लिख दिया, एक तरफ अगर उसने लिखा है पिग, PIG, और दूसरी तरफ वो लिखता है पिगलेट। अब पिग जो है वो ग्रोन अप है और पिगलेट उसका बच्चे को कहते हैं, पिग के बच्चे को पिगलेट कहते हैं। नीचे उसने ऑप्शंस आपको दे दिए कितने सारे। फर्ज किया वो एक ऑप्शन देता है आपको रैबिट, बनी, BUNNY, देता है कब, और दूसरी तरफ देता है लायन। एक ऑप्शन वो दे देता है कॉक एंड हैन, एक ऑप्शन आपको वो दे देता है काउ एंड बुल। व्हाट इज योर चॉइस? आपका चॉइस क्या हो सकता है इसमें? एनीवन इन द क्लास? जो मैंने की कॉम्बिनेशन बताया पिग और पिगलेट, इसमें क्या रिलेशनशिप है इब्राहिम? और आपकी आवाज़ मतलब ब्रेक हो गई थी ज़रा सी। अच्छा, मैंने कहा एक तो आपने कि बताया कि आप, रेबिट और बनी, उसके बाद मैं फिर से करता उस बात को, मैं एक दफ़ा लिख करता हूँ, बिल्कुल मैं एक दफ़ा लिख के जो है ना फिर ये बताता हूँ कि फिर वो सीक्वेंस हमारा, आप बिल्कुल लिखें जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तरफ आप लिखें पिग, दूसरी जगह लिखिए। अब आज तो मैं स्लाइड्स पे नहीं ना करवा रहा, मैं स्लाइड पे आऊँगा इंशाल्लाह। ये अगले सेशन से ऑनवर्ड बहुत सारी स्लाइड्स होंगी जिनसे हम पढ़ेंगे बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। कल से ही शुरू हो जाएगा स्लाइड वर्क। तो आज मैं अभी फ़िलहाल जो है आज का सेशन जो हम इस तरह ही पढ़ेंगे। तो पिग और पिगलेट, एक तरफ पिग लिखें एक तरफ पिगलेट लिखें, ये एक कॉम्बिनेशन है, इनमें एक रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप क्या है? ग्रोन अप एंड यंग वन। पिग जो होता है वो ग्रोन अप होता है और पिगलेट जो उसका बच्चा है छोटा वो यंग वन है। ये रिलेशनशिप है। नीचे मैंने लिखा रिलेशनशिप नंबर 1 लिखें बनी, BUN, बल्कि बनी नहीं, रैबिट एंड बनी। एक तरफ रैबिट लिखें दूसरी तरफ बनी लिखें, BUNNY। ठीक हो गया। अगला जो चॉइस है वो चॉइस है CUB, कब, LION, लायन। एक तरफ कब लिखें एक तरफ लायन लिखें, पहले कब फिर लायन। उससे अगला रिलेशनशिप जो देखें, जो चॉइस है आपका वो है कॉक और हैन, और उसके बाद मैंने दिया है काउ एंड बुल। ये 4 ऑप्शन उसने दिए। आप किसको चूज करेंगे चारों में से, जो रिलेट और मैं करता है फर्स्ट पिग एंड पिगलेट से? और मैं जी फर्स्ट वाले इब्राहिम, के साथ जाऊँ, रेबिट और बनी। रैबिट और बनी क्यों करेंगे इसको? और जो रेबिट है वो उसके जो मतलब वालिदैन है उसको शो करता है, और जो बनी है वो उसके बच्चे को शो करता है।
यंग वन को वेरी गुड। और Young- इसमें तो कब और लाइन भी है, उसको आप क्यों नहीं करते? लेकिन सर लाइन जो है वो सर मतलब बच्चे की तरफ नहीं जाता, वो वालिदैन की तरफ जाता है, इस वजह से। वेरी गुड। यहाँ उसने सीक्वेंस बदल दिया। पहले में जी देखे ना, पिग ग्रोन अप है और पिगलेट्स जो है वो उसका यंग वन है, ये एग्जैक्टली। सीक्वेंस था ऊपर। और नीचे भी हमें ग्रोन अप के नीचे ग्रोन अप को लेना है और यंग वन के नीचे यंग वन को लेना है। वेरी गुड। एग्जैक्टली। क्योंकि रैबिट जो है वो ग्रोन अप है और ऊपर से पिग ग्रोन अप है, इधर से पिगलेट जो है वो यंग वन है, इधर से बनी यंग वन है। बनी बनी young उसके बच्चे को कहते हैं। Yes. दूसरी तरफ दूसरे ऑप्शन में मैंने क्या कर दिया कि मैंने यंग वन को पहले और ग्रोन अप को बाद में दिया। अब एग्जामिनर ये काम करता है कई दफा, वो सीक्वेंस चेंज करके भी आपसे पूछता है। तो आप याद रखें, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप दो तरह से टेस्ट हो रहे होते हैं। नंबर वन, you are tested in terms of meanings of words, and number two, you are tested in terms of logical thinking, कि कितना आप लॉजिकली सोचते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप सही हैं आपकी, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर मार्क्स ले सकते हैं। और हर एंट्री टेस्ट, हर एडमिशन टेस्ट जो मेजर होता है इन आवर कंट्री एंड पर्टिकुलरली अब्रॉड, such questions are destined to be there। ये ज़रूर पूछे जाते हैं एनालॉजीज के ऊपर, जिसमें वोकेबलरी प्लस रैशनल थिंकिंग जो हमारी होती है वो टेस्ट होती है। ये बात क्लियर हुई है जी? यस सर। अच्छा, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स में एक और चीज़ भी टेस्ट हो सकती है और वो है होमोफोन्स। होमोफोन्स उन अल्फाज को कहते हैं जिनमें साउंड एक जैसी होती है लेकिन स्पेलिंग्स अलग अलग होते हैं। मैंने अभी आपको बताया QUAY और KEY, ठीक है? ये दोनों एक ही तरह से बोले जाते हैं। पहले को भी की कहते हैं, दूसरे को भी की कहते हैं, ठीक है? इसी तरह प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ये दोनों जो हैं ये होमोफोन्स हैं, इसलिए कि एक ही तरह से बोले जाते हैं, अगरचे स्पेलिंग अलग अलग लिखे जाते हैं इनके। अब सवाल ये होता है कि क्या होमोफोन्स फिर पेयर्स ऑफ वर्ड्स नहीं हैं? तो याद रखें, all homophones can be pairs of words, but all pairs of words cannot be homophones। तमाम होमोफोन्स जो हैं वो पेयर्स ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन तमाम पेयर्स ऑफ वर्ड्स होमोफोन्स नहीं हो सकते। इसकी तफसील इंशाल्लाह मैं आपको अपने अगले सेशन में बताऊंगा, जो वोकैबुलरी बिल्डिंग के हवाले से ही बेसिकली होगा। उसमें मैक्सिमम वही हम बातें करेंगे कि क्यों तमाम होमोफोन्स जो हैं वो पेयर्स ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं और क्यों तमाम पेयर्स ऑफ वर्ड्स होमोफोन्स नहीं होते हैं। अगली चीज़ जो है इसमें पूछ सकता है वो आपका एग्जामिनर आपसे होमोग्राफ्स और होमोनिम्स, इस तरह कई क्लासेस हैं, इनको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में करना। चूँकि अभी तो मैं आपको एक तारुफ सा दे रहा हूँ इनका जो हमने काम करने हैं, अगले सेशन में इंशाल्लाह आएंगी चीज़ें। इसके अलावा एक क्वेश्चन वो दे सकता है या देता भी है, वो है रिगार्डिंग फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स। फ्रेजल वर्ब्स जिस तरह हम कहते हैं कॉल इन, कॉल आउट, ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट, ठीक है? एक वर्ब होता है नॉर्मली, तो उसके साथ एक प्रपोजिशन आ रही होती है या दोनों तरफ एक एक प्रपोजिशन आ रही होती है, तो इनको कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। और इनके साथ इडियम्स होते हैं, ठीक है? अलादीन्स लैम्प है, जिस तरह हम कहते हैं एडम्स एप्पल है या एडम्स एल है, या बहुत सारे इस तरह और भी जो हैं इडियम्स इस्तेमाल करते हैं। तो उनका भी यही तरीका है कि अगर आपको उसका मीनिंग आता है तो कोशिश करें कि उसको यूज़ करें, अदरवाइज मत करें उसके साथ कुछ भी। यू विल अब्यूज दैट पर्टिकुलर वोकैबुलरी आइटम एंड दैट विल गिव अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन टू योर एग्जामिनर। आपका बना बनाया अच्छा इंप्रेशन जो है वो ख़राब हो सकता है उस गलत अटेम्प्ट से। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो एक सवाल होता है, कभी 5 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स का, और वो होता है सेंटेंस करेक्शन, ठीक है?
जिस तरह हम ये कहते हैं कि बर्ड सिट इन ट्रीज, तो वो उसने दिया होगा बर्ड सिट ऑन ट्रीज। जब आप उसे करेक्ट करेंगे तो वो होगा बर्ड सिट इन ट्रीज, ऑन नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह जो है वो अगर उसने दिया हुआ है सेंटेंस, फॉर एग्जांपल इज ही ऑन द कमेटी, ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। उसने दिया होगा इज ही इन द कमेटी, तो इन द कमेटी नहीं होता, ऑन द कमेटी होता है। इसी तरह हम जब कहते हैं a debating competition is being held in campus, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? जी मियाँ साहब, a debating competition is being held in campus. डिबेटिंग A कंपटीशन debating competition is being held in campus. सर याद इसमें जो रखें, कैंपस के ऑन साथ कैंपस या इन ऑन कैंपस? कैंपस, वेरी ऑन गुड। अ कैंपस, डिबेटिंग कंपटीशन इज बीइंग हेल्ड ऑन कैंपस। ऑन कैंपस कैंपस, के लिए अच्छा। ऑन होती है प्रपोजिशन इस्तेमाल, इन नहीं होती है। अ डिबेटिंग कंपटीशन इज बीइंग हेल्ड इन कॉलेज कह सकते हैं, इन यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, लेकिन ऑन कैंपस कहना पड़ेगा। तो ये करेक्शन के बारे में रूल्स जो होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, इनकी हम डिटेल पढ़ेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि बहुत अच्छी तरह करके जो है आप उनको समझें, और जब यूज़ करने की बारी आए तो भी आप कॉन्फिडेंटली उनका इस्तेमाल कर सकें। तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह से करेक्शन होंगी। कई दफ़ा सीक्वेंस गलत होगा किसी सेंटेंस का, वो सही करना होगा। कई दफ़ा किसी वर्ड गलत इस्तेमाल हुआ होगा, कॉलोकेशन सही नहीं होगी, तो आपको कॉलोकेशन सही करनी होगी। कई दफ़ा उसका सिंटैक्स पैरेलल नहीं होगा, वो आपको पैरेलल करना होगा। कई दफ़ा उसमें कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, किसी को कैपिटल नहीं किया होगा या एक्स्ट्रा कैपिटलाइजेशन की होगी। कई दफ़ा उसमें आर्टिकल गलत होगा, ए, एन और दी का गलत इस्तेमाल होगा। ठीक है। कई दफ़ा उसमें पंक्चुएशन की प्रॉब्लम्स आएंगी कि उसमें कोलन लगाना था तो सेमी कोलन लगा होगा, या सेमी कोलन लगाना था तो कॉमा लगा होगा। सो देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीपल नेचर, जिनको हम इंशाल्लाह देखेंगे इन डिटेल। हम देखेंगे कि पंक्चुएशन हमें कैसे करनी है चीज़ों की। तो ये हम उस सेशन में, उस जो पंक्चुएशन के ऊपर आएगा उस सेशन में हम ये सारी बातें करेंगे, और साथ जो करेक्शन के ऊपर जो सारे जो चीज़ें होंगी ये भी वहाँ की जाएंगी। तो ये मेरी कोशिश होगी कि ये हम 2-3 सेशंस में कोई 15-15, 20-20 मिनट जो है, आधा आधा घंटा लगाएंगे। ये नहीं है कि एक ही सेशन में हम सारे रूल्स डिस्कस कर लें और नेक्स्ट सेशन तक हमें भूल चुके हों। हम कोई चंद रूल करेंगे एक सेशन में, फिर कुछ एक सेशन में, फिर कुछ एक सेशन में, हो सकता है 3-4-5 सेशंस में थोड़ा थोड़ा टाइम लेके हम सेंटेंस करेक्शन, क्योंकि ये बुनियाद है, आप ये समझें। इफ़ आवर सेंटेंसेस आर करेक्ट, आवर essay would be correct in terms of grammar, our précis would be correct in terms of grammar, our comprehension would be correct in terms of grammar, and our translation would be correct in terms of grammar. फिर ये सारी ग्रामेटिकली सारी चीज़ें ठीक होंगी, बिकॉज वी करेक्टेड आवर रूट्स, हमने अपने रूट्स को करेक्ट कर लिया। तो ये चीज़ें इस तरह आएंगी। फिर ये सेंटेंस करेक्शन बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, उसके बाद जो एक सवाल हमारा है वो होगा जो हमारे समझे, इसके बाद हमारे कुछ मेजर को, हाँ एक पंक्चुएशन पे भी सवाल आएगा। आपको एक पूरी इबारत दी जाती है और उसमें आपने कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, सेमी कोलन, क्वेश्चन मार्क, पैरेंथेसिस, इसी तरह कोटेशन मार्क्स जो है, ये चीज़ें आपने देनी होती हैं। तो वो क्वेश्चन भी आपको आता होगा तभी अगर आपने आपका एक्सपोजर होगा पंक्चुएशन को करने का, और रीडिंग बेहतर जिसकी होगी उतनी वो ज़्यादा अच्छी पंक्चुएशन भी करके आता है। ये सवाल जो है एक। फिर एक क्वेश्चन कई दफ़ा होता है चेंज ऑफ वॉइस, आपने एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव करना होता है। ये भी हम इंशाल्लाह ड्रिल करेंगे अच्छी खासी। और चेंज ऑफ नरेशन पे भी एक सवाल आता है। अच्छा, ये याद रखें, यहाँ थोड़ी सी मैं जो है वो इस चीज़ को मेंशन कर दूँ, दैट प्रीवियसली द क्वेश्चन ऑन चेंज ऑफ नरेशन यूज्ड टू बी स्प्लिट इन नेचर। पहले जो चेंज ऑफ नरेशन पे सवाल आता था वो स्प्लिट आता था, 5 फिक्रे दिए हुए होते या 7, तो वो कहता है कि इनमें से 5 को जो है ना इनडायरेक्ट में कर दें।
या डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में कर दें, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में कर दें, इस तरह। अब वो ऐसा सवाल नहीं दे रहा, बल्कि अब वो चेंज ऑफ नरेशन कैसे करवाता है, एक डायलॉग की फॉर्म में वो क्वेश्चन देता है कि डायलॉग है, उस डायलॉग को आपने चेंज करनी है, उसकी नरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। आपने डायलॉग पढ़ना फिर आपने इनडायरेक्ट में करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो पास पेपर्स में इस तरह के पैराग्राफ्स आए हुए हैं वो आपको कम से कम करवा दिए जाएं, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए हाउ टू चेंज अ डायलॉग इनटू अ पैराग्राफ। क्योंकि अक्सर बच्चे ये कहते हैं ही सेड and she responded, he said, and she responded, he said, and she, this has nothing to do with paragraph। जब वो पैराग्राफ में करना तो फिर इस तरह नहीं करना स्टीरियोटिपिकल। then you must maintain the spirit of the paragraph, interconnectivity। और वो आपको फिर समझ जाएगा कि किस तरह आपने एक पैराग्राफ फॉर्म में जो है उसको अटेम्प्ट करना है, जिसमें मोनोटनी नहीं हो। और जब एग्जामिनर ये पढ़े पैराग्राफ तो उसे ये नहीं हो कि ये कन्वर्ट किया हुआ, उससे उसे लगे कि ये पैराग्राफ था ही पहले इंग्लिश में इसी तरह जिस तरह ये लिखा हुआ है। उसको ये नहीं हो कि ये जो है वो डायलॉग से हमने कन्वर्ट इसे किया। नो, दिस सॉर्ट ऑफ स्लैविश अप्रोच नीड टू बी अवॉइडेड। फिर 3 हमारे मेजर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जो मैंने अभी तक आपको पेपर बताया है ये 50% पेपर ये है, इसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। 50 मार्क्स तकरीबन इनके होंगे। बाकी 50 मार्क्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम chances of getting through, they depend upon these 3 questions जो मैं अभी बताने लगा। These 3 questions जिन पे हम अभी बात करेंगे, they are the heart and soul of your paper, and these 3 papers let the examiner know whether cram, whether you create, क्या आप रट्टा लगाते हैं या खुद से सोच के लिखते हैं। इससे उसे पता चलता है कि आप क्या करते हैं, आप कैसे कैंडिडेट हैं। Because these 3 questions will test your genuine English made in Japan। आपकी जाती अंग्रेजी जो है वो एग्जामिनर यहाँ टेस्ट करता है। प्रेसी कोई पता नहीं कहाँ आना है, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन कोई पता नहीं कहाँ से आना है, पैसेज ट्रांसलेशन कोई पता नहीं कहाँ से आनी है। Therefore, there is no room for cramming at all as far as these 3 questions are concerned। The people may mug up an essay from first word till the last word, same essay paper में आ जाता, लिख के आ जाता, रटा रटाया, idioms रटे रटाए आ जाएं, pairs of word रटे रटाए आ जाएं, बहुत फायदा। लेकिन ये 3 सवाल इनमें आपको खुद से लिखना होगा। यहाँ आपकी वो अंग्रेजी टेस्ट करता है। अगर आप बाकी 50 में से 30 से 35 नंबर भी ले रहे हैं, ठीक है, और आपको 5 नंबर मजीद चाहिए पास करने के लिए पेपर, और आपने उसे ये इंप्रेशन दिया इन तीनों सवालों में, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, क्या आपको अंग्रेजी खुद लिखनी नहीं आती है, वो 5 नंबर आपको देगा 50 में से। रिस्पेक्ट यू 35, तीनों में 0 दे के वो फारिग कर देगा, क्योंकि उसे ये अंदाजा हो गया कि आपने खुद से आपको अंग्रेजी लिखनी नहीं आती है, और साफ सुथरी ऑलमोस्ट एरर फ्री इंग्लिश, फिर वो नहीं देगा आपको मार्क्स। Therefore, the heart and soul of the paper consists of Précis 20 marks, comprehension 20 marks, and translation 10 marks. My maximum focus will remain on these 3 questions as far as this paper is concerned। आपने एक गिवन पैसेज को 1/3 करना होता है प्रेसी, इसी तरह गिवन पैसेज के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको आंसर करना होता है, कीपिंग इन व्यू द पैराग्राफ, उनको आपने आंसर करना होता है। लेकिन ये बात याद रखें कि आपने पैराग्राफ से बाहर नहीं निकलना होता उनको आंसर करते हुए। You have to restrict yourself to the paragraph while answering to those questions।
ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये केस स्टडी नहीं आप अटेम्प्ट कर रहे थे, केस स्टडी और कॉम्प्रीहेंशन में फ़र्क होता है। इसकी तफसील में मैं आऊँगा इंशाल्लाह अगले सेशंस में। फिर एक जो क्वेश्चन है वो ट्रांसलेशन का है कि आपको उर्दू में पैसे ही दिया जाता है जिसको आपने अंग्रेज़ी में ढालना होता है। इसमें भी एक अहम बात याद रखें, और वो ये है that while rendering a passage from Urdu into English, you have to be idiomatic in translation, not literal. आपको लफ्ज़ी तर्जमा नहीं करना है बल्कि बामुहावरा ट्रांसलेशन करनी है। फिर हम उर्दू में कहते हैं जिंदगी हर चल का नाम है, तो इसकी ये ट्रांसलेशन नहीं है लाइफ इज द नेम ऑफ मोबिलिटी, लाइफ इज द नेम ऑफ हसल एंड बसल। ठीक है, ये ट्रांसलेशन नहीं है। आप कहेंगे हसल एंड बसल कैरेक्टराइज लाइफ। ठीक है, हसल एंड बसल कॉन्स्टिट्यूट लाइफ, या लाइफ इज अ ब्लेंड ऑफ हसल एंड बसल, या लाइफ या मोबिलिटी आप कह सकते हैं मोबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट लाइफ, या जिंदगी खुशी और गम का मुरक्कब है। सो लाइफ इज अ ब्लेंड ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरो। ये नहीं है कि जिंदगी और खुशी और गम का नाम है तो आप लिखेंगे लाइफ इज द नेम ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरो। नो, लाइफ इज अ ब्लेंड ऑफ, लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, या both happiness and sorrow they constitute life। जब आपका पैराग्राफ उर्दू से इंग्लिश किया हुआ एग्जामिनर पढ़े, उसको ये इंप्रेशन जाना चाहिए कि ये पैराग्राफ था ही इंग्लिश में, उर्दू में नहीं था। If you succeed in giving this sort of impression to your examiner, then you win his sympathies. You put an indelible print, a positive print, indelible positive print on his mind or her mind. And if you delight him, if you delight your examiner, you are likely to be delighted. But if you depress him, you are bound to be depressed. ये है इन अ नटशेल हमारा ये जो इंग्लिश प्रेसियन कॉम्प्रीहेंशन का पेपर। अब मुझे अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो प्लीज पूछिए, इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी सो फार। एनी ऑफ यू? सर ये तो क्लियर है, लेकिन सर एक और सवाल है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो 2021 का जो सीरीज का पेपर आया था उसमें जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आए थे, आई डोंट नो, मतलब किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ से आए थे। तो क्या मुमकिन है कि ऐसी वोकेबलरी अगर हम मतलब डेली रूटीन में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अगर ऐसी वोकेबलरी आ जाए तो फिर इसके साथ क्या किया जा सकता है? अब नहीं आएगी। वजह क्या है? इस हद तक इस पेपर पे ले दे हो रही है कि यू कांट इवन इमेजिन, एंड प्रोबेबली द एग्जाम पेपर सेटर विल बी चेंज्ड वेरी सून। और अब इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं ना एग्जामिनर को, मैं आपको बताऊं, वो ये होती हैं कि 30% आपने वो चीज़ें पूछनी हैं जो एक एवरेज सा बच्चा जिसने मुनासिब सा थोड़ा बहुत पढ़ा हो वो कर ले। बाकी 30% आपने वो देनी है जो जिसने कुछ लेबर की हो। 40% आपने वो देनी है जो बहुत ही एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स जिसको अटेम्प्ट करें। अब इस पेपर में ऐसा नहीं किया गया वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन में, ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। और ये जो आ गया है अब इस हद तक इस पे बात हो रही है अखबारों में, बाकी जर्नल्स के अंदर, बाकी जगहों पे, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बात हो रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डेफिनेटली द स्टूडेंट्स विल बी गिवन सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन इन दिस पेपर। तो ये जो है बहुत ही खौफनाक किस्म का उसने पेपर इस दफ़ा दिया है, पर्टिकुलरली दिस वन। और ट्रांसलेशन में भी आहिस्ता आहिस्ता, पहले वो बड़ी आसान आसान ट्रांसलेशन दे रहा था, अब वो यकदम मुश्किल की तरफ आ रहा है, लंबे लंबे सेंटेंसेस खींचता है
और जब तक किसी को अच्छे लेवल की उर्दू नहीं आती है, he or she would be unable to qualify now. उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करना. So we have to prove ourselves to be the fittest to qualify CSS now. हमें fittest होना पड़ेगा. जिस तरह मैंने शुरू में बताया, we have to prove ourselves to be a red apple in the galaxy of green ones, to be easily chosen by our examiner. तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी. हाँ, वोकैबुलरी में भी आपको किसी हद तक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि दिस वुड बी द लास्ट चांस फॉर आस्किंग सच एलियन वर्ड्स ऑल टुगेदर. पहले क्या होता है, पेपर जब आता है तो उसमें तकरीबन जो 40% वर्ड्स होते थे वो एलियन होते थे. ठीक है ना. 20 में से आप ये समझें कि 14 वर्ड्स जो वो होते थे, या 12 वर्ड्स कम अज़ कम वो होते थे, 12 के करीब, जो मतलब कुछ मेहनत या उससे थोड़े से अगले स्टेज पे जिन्होंने मेहनत किया वो आराम से कर लेते थे, 10 से 12 वर्ड. अब क्या हुआ है, और कई लोग जो है, जो एक्सेप्शनल केसेस होते थे, वो 16, 16, 17, 17, 18, 18 तक उनके करेक्ट होते थे. इस दफ़ा क्या हुआ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स न्यू ओनली 2 वर्ड्स. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, वेरी फ्यू न्यू मोर देन 5, वेरी फ्यू, कि जिनको 4 से 5 वर्ड्स आते थे, इससे आगे नहीं आते थे. तो ये जो है, दिस इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज, बेसिकली दिस इज़ द टेस्ट ऑफ इग्नोरेंस. इस दफ़ा उसने इग्नोरेंस को ज़्यादा टेस्ट किया है, नॉलेज को कम. इसी पे बात हो रही है. ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं बोलती थी, क्योंकि उनके तो अपने भाई बंदे हैं जो पेपर सेटर हैं. ठीक है, तो लेकिन उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हर जगह से बोलने की आवाज़ें आ रही हैं. इसलिए कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव एलिमेंट अब निकलेगा इंशाल्लाह अज़ीज़. लेकिन सर जो प्रेसी थी वो भी अल जज़ीरा की कई रिपोर्टिंग से उठाई हुई थी, तो वो भी सेम ही मुश्किल थी जैसे वो इंटरव्यूज और जी, वो भी जो है इस तरह की नहीं. मतलब आप ये ना समझें कि वो जो है ऐसी बात थी कि जिसे अटेम्प्ट करना जो है महाल था. वो ऐसी बात नहीं थी. प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन में वो प्रॉब्लम नहीं थी. ट्रांसलेशन अलबत्ता उसने मुश्किल दी है. बाकी अगर हम ये कहें कि फिर तो बाकी चीज़ें तो आप ये समझें देवर एट पार विद CSS लेवल. वो तो हमें भी, जब मैं आपको करवाऊंगा तो उसमें भी कुछ चीज़ें आप करेंगे और आप गड़बड़ करेंगे, और इन सेशंस में मैं करवाऊंगा ही ये, क्योंकि मेरा फोकस ये होता है कि मैक्सिमम आपकी चीज़ें चेक हो के आपको मिलें. देखिए ना, मैं तकरीबन पिछले 12-13 साल से किप्स में पढ़ा रहा हूँ, और उनकी जो क्लासेस जो होती हैं रेगुलर, वो भी. तो उसमें ये होता है कि हमारे पास जो बच्चा आता है ना, उसमें 80% students get benefit up to 20%, and 20% students get benefit up to 80%. Who are those 20%? They keep on submitting their assignments to the teachers and keep on getting feedback. They keep on getting their problems limelighted and keep on getting them fired gradually. And a day dawns, their expression becomes almost flawless. उनका एक्सप्रेशन फ्लॉलेस हो जाता है तकरीबन. और ये वो स्टूडेंट्स होते हैं फिर जिनके चांसेस बड़े ब्राइट होते हैं. वो 80% तो दे कम इन ऑर्डर टू रोम अबाउट हेयर एंड देयर. उन्होंने गपशप लगानी है, इधर उधर होना है और फिर चले जाना है. कोई चीज़ नहीं सबमिट करनी उन्होंने. रीज़न क्या है? राइटिंग इज़ द टफेस्ट एक्सरसाइज वन पासिस थ्रू. दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम लिखना है. हमारे पास कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे आते हैं, सर ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम. मैं उन्हें कहता हूँ बेटा लिख के दो, क्या मसला है. 50% problems get over at the spot. Why? They are reluctant to write. 50% मसले खड़े खड़े हल हो जाते हैं. सिर्फ एक वजह कि लिखना नहीं चाहते बच्चे हमारे. Why? When we write, we are permanently exposed. इसी से वो डरते हैं. They are exposed, and once they are exposed, they feel debased. लेकिन ये डरने वाली बात नहीं है.
अगर हम कुछ लिखेंगे ही नहीं तो बेहतर कैसे होंगे? अगर एक बच्चा चलेगा ही नहीं इस डर से कि वो गिर जाएगा तो वो तो बस लेटा रहेगा। हमें लेटे नहीं रहना है, हमें सबमिट करना है। और मैं आपको बताऊं, यकीन करें, इस्लामाबाद में मेरा एक लेक्चर था, 2008 की बात है, CSS वालों के साथ। तो वहाँ मैं जब गया तो क्लास में टोटल 5 या 6 बच्चे थे। उसमें से 3 लोग जो थे वो MA अंग्रेज़ी थे, बाकी 1-2 इंजीनियर्स, इस तरह एक आध डॉक्टर, और ये थी 2008 की बात है। तो उन्हें मैंने जाके टॉपिक्स दिए 3, मैंने कहा इनमें से किसी एक टॉपिक पे लिखें, और मैंने ब्रीफ भी कर दिया थोड़ा सा उन टॉपिक्स पे। मैंने कहा लिखें इन तीनों में से किसी एक पे। उन्होंने लिखा और इंतहाई थकी हुई अंग्रेज़ी लिखी, फुल ऑफ फ्लॉज। वो तीनों MA अंग्रेज़ी भी उसमें शामिल थे। मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं सर हमें ना पूछें, बस हमें इस तरह ही करवाया गया कि जी हमें। मैंने उनसे जब प्रोब किया तो वो कहते हैं जी हमें फ़र्ज़ किया हैमलेट था हमारे कोर्स में, तो टीचर आए, उन्होंने हमें आके पहला जो 2-3-4 पेजेस पढ़ाए, उसके बाद कहा कि खुद ही पढ़ लें, अब हम डिस्कशन करेंगे। भाई मुझे अंग्रेज़ी आती है, लेकिन जब मैं हैमलेट पकड़ता हूँ तो मुझे भी भूल जाती है। आपको उर्दू आती होगी, लेकिन जब आप गालिब को पकड़ेंगे ना तो आपको उर्दू भूल जाती है। ठीक है ना? हमें फ़ारसी आती होती है, लेकिन जब हम किसी फ़ारसी के बहुत बड़े शायर को पकड़ेंगे या क्लासिकल राइटर को पकड़ेंगे तो हमें फ़ारसी आते आते भी भूल जाएगी। वाई? इट इज़ लिटरेचर, अदब है। एंड when language reaches its climax, literature constitutes। जब कोई ज़ुबान अपने नुक्ता उरूज को पहुंचती है तो फिर अदब तख्लीक होता है। इसलिए तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया तो हमने क्या लिखना है। एक बच्ची उनमें थे इंजीनियर, ठीक है, उसने मुझे क्लास के बाद कहा कि सर मैं 8-8 घंटे बैठ के पढ़ सकती हूँ एक स्ट्रेच में, आप मुझे टॉपिक्स बताएं, मैं उस पर लिख के आपको दूंगी। तो मैं हफ्ते में एक दिन जाना, संडे को इस्लामाबाद, उस क्लास के लिए। मैं यकीन माने, मुझे यही था कि इसने कुछ भी नहीं लिखना, बस ऐसे ही पूछ लिया कि अक्सर बच्चे पूछते हैं। मैं हर दफ़ा गया हूँ उसने कुछ लिखा होता, फिर टॉपिक ले लेती, फिर लिखती। हर दफ़ा उसने लिखा और हर दफ़ा मुझे महसूस हुआ कि कुछ बेहतरी है। पहले दिन उसने भी इंतहाई फजूल लिखा हुआ था, फुल ऑफ मिस्टेक्स, टेंस मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, सिंटैक्टिक मिस्टेक्स, ऑर्थोग्राफिक मिस्टेक्स, पता नहीं क्या क्या, पंक्चुएशन मिस्टेक्स। लेकिन 15 दफ़ा मैं गया और हर दफ़ा लाइक अ रोबोट शी केप्ट ऑन सबमिटिंग हर असाइनमेंट। और मैं भी चूँकि डेवो में 4 साढ़े 4 घंटे फारिग होता था, उसमें मैंने देख के चला जाता क्या उसने लिखा है, उसे जाके दे देता, उसे बता देता कि ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें फायर करो। तो हर सेशन के बाद जो है अगले सेशन तक कुछ ना कुछ बेहतरी मुझे लगी, कुछ ना कुछ स्लाइट। फिर कई साल मैं नहीं गया, एक दफ़ा फिर मैं गया कि 6-7 साल के बाद मेरी मुलाकात उसी बच्ची से। उसने मुझे कैंपस में, किसी ने मुझे बहुत अच्छी तरह वेलकम किया, तो मुझे उस बच्ची ने, वो वही बच्ची थी, उसने मुझे कहा सर आपने मुझे पहचाना? तो मैंने कहा कि मैंने तुम्हें सही तरह तो नहीं पहचाना, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरी स्टूडेंट हो कहीं। कहती है सर आपने मुझे साईं कहा था कि आप अंग्रेज़ी में साईं हो बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर क्या कर रही हो? तो कहती है सर आई एम अ बिग साईं नाउ। मैंने कहा फिर तुमने अंग्रेज़ी गलत बोली है, बिग नहीं होता, ग्रेट साईं होता है, बिग तो साइज में बड़ा होता है, लाइक एन एलिफेंट। सो आर यू बिग? कहती है सर आप जो मर्जी आप कहें, अब मैं बड़ा साईं हो गई हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है आई एम असिस्टेंट कमिश्नर अटक एंड आई स्टूड 3rd इन CSS इन दैट अटेम्प्ट। ये हैं लोग जो जब आगे देखते हैं तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, फिर आगे ही देखते हैं। एंड दे गेट ग्लूड टू द चेयर इफ नॉट एल्फीड, एंड दे रिमेन फोकस्ड। और वो फायदा उठाते हैं जो 1 आउट ऑफ 1000। मैंने कोई 13 साल पढ़ाया है,
और 13 साल में मुझे 13 कैंडिडेट्स ऐसे नहीं मिले जिन्होंने इतना इम्प्रूव किया हो और इतने फोकस्ड हों। हाँ, बहुत सारे आए, क्वालिफाई भी बहुत सारे किया, लेकिन इतने लोअर लेवल से इतने हायर लेवल पे पहुंचना कि पोजीशन होल्डर बन जाना, such examples are rare, but such examples are there. ये मैंने इसलिए शेयर कर दी कि इस तरह भी होता है, और ये इम्तिहान बाकी तमाम इम्तिहान से बढ़ के आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है। My request to all of you is to get maximum benefit, क्योंकि मैं थोड़ा सा I am a very strict examiner. I will make your writings undergo surgical treatment, उनकी सर्जरी की जाएगी, ठीक है, so that you may avoid cardiac surgery or neurosurgery at Islamabad by FPSC, उससे आप बच सकें, नहीं तो उन्होंने करके भेज देनी। और हम क्यों नहीं चेक करवाते अपनी चीज़ें कि लोग क्या कहेंगे? लोगों ने तो पैगंबरों को भी नहीं बख्शा, हमें बख्शेंगे? और अगर हम इस डर से नहीं सबमिट करेंगे, वी शैल कीप ऑल आवर लूप होल्स विद आवर सेल्व्स एंड वी शैल प्रेजेंट इट टू FPSC। और फिर जब FPSC हमारी खौफनाक किस्म का हमें रिजल्ट देगी तो पूरा साल हमारी ईगो हर्ट रहेगी, अनफॉर्चुनेटली। सर वो एक सेइंग है कि मतलब लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी हम सोचे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो भाई डोंट बॉदर अबाउट पब्लिक ओपिनियन। हमने बहुत कुछ देखा है इस हवाले से। हम जब GC में आए थे तो उर्दू मेरी बोलनी आती थी, पंजाबी बोलते थे। हमारे साथ पश्तो बोलने वाले कुछ बच्चे थे जो KPK में 1982 की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फर्स्ट ईयर में जब आए तो KPK से थे, बलूचिस्तान से भी थे, हमारे जैसे थे बिल्कुल, वेरी पुअर इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। लेकिन वहाँ के माहौल में आके 2-3 महीने के अंदर हमें ऑलमोस्ट उसने सिखा दिया कि आपने कैसे बोलना है, कैसे लिखना है। वहाँ इतने अच्छे हमारे एक टीचर थे BH चिश्ती कि उन्होंने हमें उस ट्रैक पे चलाया जिस पे थोड़े लोग चलते थे। वो मुश्किल ट्रैक था, रट्टे से दूर ट्रैक था, खुद से सोचने का ट्रैक था। हमें डायरी राइटिंग पे लगा दिया। हम रोज़ अपनी डायरी लिखते थे अंग्रेज़ी में, और इंटर में फिर हमने कोई रट्टा नहीं लगाया कि इस मजमून को याद कर लें, उसको कर लें। नो, just getting a concept and rephrasing it in our own expression. So this has been the contribution of great teachers. However, such teachers who are addicted to teach, they are very rare. Why? There is no dedication. It is a rare commodity now. ठीक है ना? उस वक्त वैसे टीचर थे, आज बस हमारे जैसे हैं। जी बेटा मियाँ साहब। सर ये बात ठीक कर रहे हैं आप। एक्चुअली एक मसला ये भी है ना कि मार्केट में जो टीचर्स हैं वो सही गाइड नहीं करते। अभी आपने जो बातें की हैं ना, असल में होना ऐसे ही चाहिए कि भाई नेचुरल मैंने फ्लो के तो साथ। आपको मेरी बात सुन ले गौर से। मैंने आपको साफ कह दिया है, अगर इस सेशन को ज्वाइन करना है यू हैव टू वर्क। ये नहीं है कि मैंने आपको एक पुड़िया दे देनी है, वो आपने अंदर ले जाएं और उससे आप स्कॉलर बन जाएंगे। इट विल नेवर हैपन। अगर कोई इस सोच के आ रहा है तो फिर वो बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको यू विल बी मेड टू वर्क एंड देन यू आर लाइकली टू एक्सेल। फिर चांस है कि आप आगे जाएंगे अगर आप काम करेंगे। ये नहीं होगा कि हम कोई ऐसी जो है आपको कोई गैस देंगे कि जो पेपर के अंदर डायरेक्ट आएगा, या मेरा ताल्लुक जो है वो किसी एग्जामिनर के साथ है या पेपर सेटर के साथ है। कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा ओइंग टू माई एक्सपीरियंस, जब मैं पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करता हूँ कि भाई उसमें पास्ट पेपर्स में जो प्रेसी आई है ना, उसका वो समझ लें कि अगर पिछले 10 पेपर्स आप उठा के देखें तो वो तकरीबन 4 या 5 दफ़ा जो है वो रसल की राइटिंग्स में से आती है। तो कोशिश करें कि बटन रसल को थोड़ा सा पढ़ लें, उसकी कोई 1-2 एसेज 2-4 ऐसे, ताकि आप उसके एक्सप्रेशन से थोड़ा सा वाकिफ़ हो जाएं।
so that you may better decode the passage. या comprehension आई है तो वो रसल या लैम या बेकन की राइटिंग्स में से आती है तो वो ज़रा पढ़ लें, या किसी और जगह से आती है जो डोमिनेंटली जहाँ से देता है, तो ये हम कर सकते हैं। ये नहीं हम कह सकते आपको कि जनाब वो एग्जामिनर तो बेफिक्र हो जाए, उसने जो कुछ देना मुझे पता है, बस वो चीज़ें आप करें। नेवर। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये नहीं होंगी, चाहे हमें एक भी बंदा ज्वाइन करे, वो एक काफ़ी है, बजाय इसके कि मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और वो बिल्कुल जो है वो उनका कोई फोकस ही नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल सर, पीएमएस में सर जो मेरा मेरा ऐसे पास हुआ था उसी वजह से ही हुआ था कि मैं सिंपल रहा था और जो नेचुरल फ्लो आया था रेलिवेंट आर्गुमेंट्स के साथ, इसी वजह से हुआ था ये जो 2020 का। नहीं इंशाल्लाह बेहतर होगा मामला, अगर आप फोकस रहेंगे तो चीज़ बेहतर होंगी। जी बेटा हाजिरा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इन चीज़ों की तो हमें फॉर श्योर ज़रूरत है, लेकिन क्या इससे हमारी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी? हाँ, स्पोकन के लिए मैं आपको, जाहिर है ये एक और एरिया होता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इफ़ समथिंग गुड गेट्स इन, समथिंग गुड विल कम आउट। अगर आपका रीडिंग एक्सपोजर बहुत अच्छा हो जाता है तो स्पोकन पे फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा फ़र्क तब पड़ेगा जब आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे, जब आप लाउड रीडिंग करेंगे, जब आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रेजेंट करेंगे, देखेंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ कंपैटिबल है कि नहीं ये चीज़, जब फिर आप लोगों के साथ फिर आप जा रहे हैं तो सामने जो कुछ आपके सामने हो रहा है उसको आप खुद से थोड़ा सा एट अ लाउडर वॉल्यूम थोड़ा सा उसे करें कि मैं जो देख रहा हूँ उसको मैं कहना है एक्सप्रेस इट इन इंग्लिश, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। फिर ये काम करें कि किसी बंदे के साथ आप बोलना शुरू करें घर पे या बाहर, और कम्युनिकेट जब आप करते हैं तो मुझे याद है कि हम जब जीसी में आए थे तो हम बिल्कुल नहीं बोलते थे, हम पंजाबी बोलते थे। तो वहाँ हमने फिर क्या किया कि वहाँ जाहिर है सारी क्लास अंग्रेज़ी में बोलती थी, मेरे जैसे और भी थे KPK से, बलूचिस्तान से, पंजाब के दूर दराज इलाकों से, सिंध से। तो हम चुप करके मस्त होकर बैठे रहते थे, क्लास में शेयर ही नहीं करते थे, बिकॉज वी डिडंट नो हाउ टू स्पीक इन एन एलियन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपनी मदर टंग में बोलना आता था, पंजाबी में। तो फिर हमें चिश्ती साहब जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें लगाया कि आप अंग्रेज़ी बोलें, और आपकी पेनल्टी ये है कि इफ़ एनीवन वायलेट्स ही विल एंटरटेन द रेस्ट ऑफ द 7 मेंबर्स, चूँकि एक ग्रुप में 7 लोग होते, 7-8 ट्यूटोरियल ग्रुप में, तो वो हमारे ट्यूटर भी थे। तो वो उन्होंने फिर कहा कि आपको फिर हम जो है ना, नहीं तो आपको ये पेनलाइज करेंगे, आपको पेनल्टी ये होगी कि वो बंदा सारे बाकी लोगों को जो है वो लंच उसकी तरफ से होगा, वो सारी हाजिरियाँ हॉस्टल में उसकी लगेंगी। एंड यू नो दैट स्टूडेंट लाइफ इज़ द लाइफ ऑफ पॉवर्टी and lunch is the most expensive meal in hostel. So if a person entertains the rest of the 7 people at lunch on a certain day, it means that the next week would be on Anarkali's pulses. अगला वीक फिर अनारकली की दालें खानी होंगी, नॉट द गुड फूड ऑफ हॉस्टल। तो इस थ्रेट से मुझे नहीं याद कि एक से ज़्यादा दफ़ा किसी को पेनल्टी, हम जहाँ बोलते अंग्रेज़ी बोलते गलत सही इसकी नहीं बॉदर करना था। और लोग बहुत बातें बनाते थे, बहुत बुरी बुरी बातें सुननी पड़ती थी, वी हैड टू पॉकेट इंसल्ट एवरी नाउ एंड देन। लेकिन वो 2-1.5 महीने रहा मामला, फिर वी केम ऑन द एटलीस्ट ऑन द हाईवे ऑफ इंग्लिश इफ नॉट ऑन द मोटरवे। हम हाईवे पे ज़रूर आ गए थे 2-2.5 महीने के एक्सपीरियंस से, जो बड़ा सख्त एक्सपीरियंस था। सर ये काम हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एक टीचर थे, वो भी करते थे। तो बेटा वो भी ये कहते थे काम कि करते आपको हैं कुछ लोग, जो लोग होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं चार्ज टीचर, एडिक्टेड टीचर, जो एडिक्ट होते हैं टीचिंग करने में, जिनको एडिक्शन होती है पढ़ाने की, वो तो ये करेंगे। बहरहाल आज के सेशन, अगर कोई और सवाल आपका है तो उसको एंटरटेन करता हूँ, बाकी इसको हम आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं विद द होप दैट we shall excel and we shall benefit out of these sessions, and may Allah give me the courage to remain consistent and focused, and may be loyal to your cause. आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।